लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा, टीवी देखते देखते मैंने खाना ख़त्म किया, सोते सोते वो अचानक गिर गया, बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। सिंपल आसान सा स्ट्रक्चर है। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. While plus verb plus ing plus object plus other words. While plus verb plus ing plus object प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं। लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा। while lying down I read the newspaper. while lying down I read the newspaper. टीवी देखते देखते मैंने खाना खत्म किया। while watching TV I finished food. While watching TV I finished food. सोते सोते वो अचानक गिर गया। While sleeping he fell all of sudden. While sleeping he fell all of sudden. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be beneficial for your academic career. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया। बिल्कुल डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया। while talking he told me everything. while talking he told me everything. बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। while sitting he fell asleep. While sitting he fell asleep. पढ़ते पढ़ते वो सो गया। While studying he slept. While studying he slept. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be beneficial for your academic career. चलते चलते वो गिर गया। चलते चलते वो गिर गया। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks मनु। वो खाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने मुझे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कसर नहीं छोड़ना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लीव इन पॉइंट इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन। सो keep this point in your mind that advanced English sentence structure are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Watch this video till to end. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus leave any point in प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो खाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ही डज नॉट लीव एनी पॉइंट इन ईटिंग। ही डज नॉट लीव एनी पॉइंट इन ईटिंग। उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ही डिड नॉट लीव एनी पॉइंट इन डिस्ट्रॉइंग।
He did not leave any point in destroying me. उसने मुझे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ा. He did not leave any point in beating me. He did not leave any point in beating me. वो पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता. He does not leave any point in study. He does not leave any point in study. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain fluency. That is very important for spoken English. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. वो लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता. वो लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता. सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मनन. तुम इतना क्यों सोते हो? वो इतना क्यों पढ़ता है? तुम इतना क्यों खेलते हो? वो इतना क्यों बोलता है? ऐसे जुमले हम रोज अपने डेली लाइफ में बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सो मच प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम इतना क्यों सोते हो? डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है. वाई डू यू स्लीप सो मच? वाई डू यू स्लीप सो मच? वो इतना क्यों पढ़ता है? वाई डज ही स्टडी सो मच? Why does he study so much? तुम इतना क्यों खेलते हो? Why do you play so much? Why do you play so much? वो इतना क्यों बोलता है? Why does he speak so much? Why does he speak so much? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम इतना क्यों कहते हो? तुम इतना क्यों कहते हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मालूम. उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता. तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता. उसे तो कार चलाना भी नहीं आता. हमें तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता. ये जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो कुछ यूँ है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस A1 प्लस नो हाउ टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता. ही डज नॉट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल. ही डजंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल. तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता. यू डोंट even know how to cook food. You don't even know how to cook food. उसे तो कार चलाना भी नहीं आता. He doesn't even know how to drive a car. He doesn't even know how to drive a car. हमें तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता. We don't even know how to play cricket. We don't even know how to play cricket. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. उसे तो बोलना भी नहीं आता. उसे तो बोलना भी नहीं आता. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. ये बोलने का सही तरीका नहीं है. ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है. ये खाने का सही तरीका नहीं है. ये दौड़ने का सही तरीका नहीं है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं सही तरीका नहीं है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट द प्रॉपर वे. नोट द प्रॉपर वे मीन सही तरीका नहीं है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इट प्लस इज प्लस नोट प्लस द प्रॉपर वे प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये बोलने का सही तरीका नहीं है. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक. ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू स्टडी.
इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू स्टडी, ये खाने का सही तरीका नहीं है। इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू ईट, इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू ईट, ये दौड़ने का सही तरीका नहीं है। इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू रन, इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू रन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये सोने का सही तरीका नहीं है, ये सोने का सही तरीका नहीं है। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ, वो सिर्फ आपके लिए बना है। किताबें पढ़ने के लिए बने हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं के लिए बना है या के लिए बना हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेंट फॉर। मेंट फॉर मीन के लिए बना है या के लिए बना हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So, watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus meant for plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some example for better understanding. हम एक दूसरे के लिए बने हैं डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं। वी आर मेंट फॉर ईच अदर, वी आर मेंट फॉर ईच अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ। आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू, आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू, वो सिर्फ आपके लिए बना है। ही इज़ only meant for you, he is only meant for you। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which can take you from basic to advanced level. Next example, किताबें पढ़ने के लिए बने हैं। बुक्स आर मेंट फॉर रीडिंग, बुक्स आर मेंट फॉर रीडिंग। वन मोर एग्जाम्पल, वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए बना है। ही इज़ मेंट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ मेंट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तुम सिर्फ पढ़ने के लिए बने हो। यू आर मेंट फॉर रीडिंग, यू आर मेंट फॉर रीडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। एज आई टोल्ड यू बिफोर that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है, ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे, हम चल चल कर थक गए हैं। वो आज काम कर कर के थक गया है, वो खेल कर कर के थक गया है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus tied of plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some example for better understanding. हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे। डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम, वी वर टायर्ड ऑफ
waiting for him. Next example for better understanding, हम चल चल कर थक गए हैं. We are tired of walking. We are tired of walking. वो आज काम कर कर के थक गया है. He is tired of working today. He is tired of working today. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more examples for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which could be useful for your academic career. Next example, वो खेल कर कर के थक गया है. He is tired of playing. He is tired of playing. Next example for better understanding. मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ. I am tired of making you understand. I am tired of making you understand. Next example for better understanding. मैं उसकी बातें सुन सुन कर थक गया था. I was tired of listening to her talk. I was tired of listening to her talk. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be useful for your academic career. वो रो रो कर थक गई है. वो रो रो कर थक गई है. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. न जाने कहाँ से ऐसे लोग आते हैं. न जाने कहाँ से बेकारी आ गया. न जाने कहाँ से वो अचानक आ गया. न जाने कहाँ से पागल आदमी आ गया. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं न जाने कहाँ से. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ नोवेयर. आउट ऑफ नोवेयर मीन न जाने कहाँ से. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फॉर्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Sentence plus आउट ऑफ नोवेयर. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और आउट ऑफ नोवेयर ये फार्मूला है. आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. न जाने कहाँ से ऐसे लोग आते हैं. डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं. सच पीपल हैपन टू कम आउट ऑफ नोवेयर. Such people happen to come out of nowhere. Next example for better understanding. न जाने कहाँ से बेकारी आ गया. A beggar came out of nowhere. A beggar came out of nowhere. न जाने कहाँ से वो अचानक आ गया. He came all of a sudden out of nowhere. He came all of a sudden out of nowhere. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more examples for better understanding. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example, न जाने कहाँ से पागल आदमी आ गया. A madman came out of nowhere. A madman came out of nowhere. न जाने कहाँ से वो आ पहुँचा. He arrived out of nowhere. He arrived out of nowhere. Next example for better understanding. न जाने वो कहाँ से आता है. न जाने वो कहाँ से आता है. Where does he come out of nowhere?
Where does he come out of nowhere? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level. That could be useful for your academic career. न जाने कहाँ से वो आता था, न जाने कहाँ से वो आता था. सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. मेरा दावा है कि वो इन मौके पे धोखा देगा. मेरा दावा है कि ये प्लान काम करेगा. मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम मैच जीतेंगे. मेरा दावा है कि वो सच बोल रहा है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरा दावा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई बेट. आई बेट मीन मेरा दावा. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So, watch this video till the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. I bet plus comma plus sentence. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. मेरा दावा है कि वो इन मौके पे धोखा देगा. डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं. आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम. आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मेरा दावा है कि ये प्लान काम करेगा. आई बेट दिस प्लान विल वर्क. आई बेट दिस प्लान विल वर्क. मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम मैच जीतेंगे. I bet we will win the match. I bet we will win the match. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. That could be useful for your academic career. Next example. मेरा दावा है कि वो सच बोल रहा है. I bet he is telling the truth. I bet he is telling the truth. Next example for better understanding. मेरा दावा है कि वो झूठ बोल रहा है. I bet he is telling a lie. I bet he is telling a lie. मेरा दावा है कि वो नहीं आएगा. I bet he will not come. I bet he will not come. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which could be useful for your academic career. मेरा दावा है कि वो जाएगा. मेरा दावा है कि वो जाएगा. सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स माना. मैं अपना फ़ोन ठीक करवा रहा हूँ. वो अपने बाल कटवा रही है. हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं. तुम अपनी कार कहाँ ठीक करवाते हो. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है इसको समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus helping verb plus get. Get ये टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है. प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं अपना फ़ोन ठीक करवा रहा हूँ. डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं. आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड. आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो अपनी बाल कटवा रही है. शी इज गेटिंग हर हेयर cut. She is
getting her hair cut. हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं। We are getting our house painted. We are getting our house painted. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that could be useful for your academic career. Next example. तुम अपनी कार कहाँ ठीक करवाते हो? Where do you get your car fixed? Where do you get your car fixed? Next example for better understanding. मैं तुम्हें पिटवा दूंगा. I will get you beaten. I will get you beaten. Next example for better understanding. वो अपनी गाड़ी ठीक करवा रही है. He is getting his watch repaired. He is getting his watch repaired. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. वो अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है. वो अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure.